Hello friends, in this video we are going to discuss the physiology of the skin. The very first, when we talk of skin, we have three layers of the skin. The very first is epidermis. This epidermis is the outer layer of the skin. So this epidermis is the outer layer of the skin. Second we have is dermis. Below the epidermis we have dermis layer, and below the dermis we have hypodermis. Below the dermis we have hypodermis. Okay. Next, when we talk of epidermis, which is the outer layer, so the epidermis is the outer layer, and this epidermis is made up of cells, that is, it is the cellular layer. So when we talk of epidermis, it is the outer layer of the skin and it is made up of cell, that is, the outer layer of the skin is epidermis and it is the cellular layer which is made up of keratinocytes. Okay, so below the epidermis we have dermis. When we talk of dermis, okay, it is below the epidermis is the dermis, and this dermis is made up of collagen, and elastic fibers. So when we talk of dermis, it is made up of collagen and elastic fiber. Okay, and when we talk of the epidermis and dermis, the junction of epidermis and dermis is known as basement membrane. Suppose this is epidermis and this is the dermis. Okay, so between the epidermis and dermis, the junction of this epidermis and dermis, it is known as the basement membrane. Okay, so what is basement membrane? It is the junction of the epidermis and the dermis. So the basement membrane is the junction of epidermis and the dermis. Next one is hypodermis. The very first we have is epidermis. Next is basement membrane. Next is dermis. Okay. This epidermis and dermis, the junction is known as basement membrane. And below the epidermis we have is hypodermis. Okay. So what is hypodermis? This hypodermis, it is made up of fat cells. Okay, so the hypodermis is made up of the fat cells. So quickly we will revise the layers of the skin. The very first outer layer we have is epidermis, and the junction, it is like this. Now this basement membrane is look like this. Okay, and below that basement membrane you have is dermis, and below the this is the dermis. This is the basement membrane. Below the basement membrane you have is dermis. Below the dermis we have is hypodermis. Okay, this epidermis, it is made up of cellular layer, that is keratinocytes. This dermis, it is made up of collagen and elastic fibers. Hypodermis is made up of fat cells. Okay, and this one na, so this junction, it is known as basement membrane, and this part is known as rete ridges. Rete ridges, and below this part is known as dermal papilla. Dermal papilla. Okay. And when we talk of epidermis, this epidermis is again having a layers of epidermis that we will study in the next video, the layers of epidermis. Okay, so in this lecture we are going to study in detail about the epidermis, that is the physiology of the skin. In the last video we have seen the layers of the skin. The very first we talk about the epidermis, dermis and hypodermis. So in this video we are going in detailing of epidermis layer. This epidermis is the outer layer of the skin, and this epidermis is further having a few layers. Okay,
The very first, stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum bacilli, and next basement membrane. It is the junction between the epidermis and the dermis. Okay, so these are the layers of the epidermis, and epidermis is the outer layer of the skin that is made up of cell. It is the cellular layer. The cells are keratinocytes. So this outer layer, that is epidermis, in this outer layer the main proliferative compartment is the basal layer. Okay, that is stratum bacilli. The basal layer is the main proliferative compartment of the epidermis. Okay, skin में सबसे पहले क्या होगा? Epidermis. Next we have is the basement membrane, which is the junction between the epidermis and the dermis, and next is dermis, next is hypodermis. So this epidermis again have the following layers: stratum bacilli, stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, spinosum, bacilli. Okay, next, when we talk of this epidermis is a cellular layer, and the cells, that is keratinocytes, and these keratinocytes they synthesize structural protein. What all proteins are synthesized? Keratin, leucin, filaggrin. Okay, and these protein, they play a key role in maintaining the skin barrier function. Okay, so these proteins, they play a key role in maintaining the skin barrier function. Next, the keratinocytes, they are also responsible for the synthesis of vitamin D under the influence of UVB light. Okay, ultraviolet B light के influence में this keratinocyte is responsible for the synthesis of vitamin D. Next, these keratinocytes, if there will be any mutation in the keratin gene, then it will result in blistering disorder and ichthyosis. We will see in detailing the blistering disorders, but as of now, you have to remember keratinocytes, if there will be any mutation in the keratin gene, it will result in blistering disorders and the ichthyosis. So when we talk of the layer of the skin, that is epidermis, 90% of the epidermal cells, they are made up of keratinocytes. Remaining 10%, they are Langerhans cells. What are the function of Langerhans cell? The prime function of the Langerhans cell is the antigen presentation to the lymphocytes. Next, in this 10% cells, first is Langerhans cells, second one is melanocytes. Melanocytes, they occur predominantly in the basal layer of the epidermis, and they are of neural crust origin. Next we have is Merkel cells. They occur in the basal layer, and the prime function is they play a role in signal transduction of fine touch. Okay. Hello my dear friends. In this video we are going to discuss basement membrane zone. This is the dermatology lecture number 3. In the previous lecture we have seen the layers of the skin, that is the physiology now, layers of the skin, and basically we have seen in the next video we have seen the epidermis layer. Now what is the basement membrane, that I have explained in my previous lecture, but for the short I will discuss. Suppose this is the epidermis. Okay, this is the epidermis layer of the skin, and below the epidermis there is dermis. So the junctional zone between the epidermis and the dermis, that is known as the basement membrane zone. What is this known as? That is known as the basement membrane zone. So this basement membrane zone, now in this lecture we will see in detailing the basement membrane zone, what it is, and
we will go through the detail. Okay, before that we will quickly revise the layers of the epidermis. What are layer of the epidermis are? The very first we have is stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, basilae, and then the basement membrane. Okay, so this is the layers of the skin. The very first epidermis. So epidermis we have the, and here is hypodermis. Okay, hypodermis. The very first is epidermis. Epidermis we have these layers: stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, and stratum basale. Below the stratum basale, there is a junctional zone between the epidermis and the dermis, that is known as the basement membrane zone. Okay, and below the basement membrane we have dermis and then hypodermis. Now we will see in detailing about this zone. This is the basement membrane zone. Okay, so this basement membrane zone, above the basement membrane zone, what it is? Stratum basale, and below it is a dermis layer. We will go to, in this lecture we will only do the basement membrane zone detailing. Okay, so this is the basement membrane zone. This is a very beautiful diagram to explain you. So basement membrane zone, in the layer of epidermis, we have seen the layers of epidermis. In that the stratum basale layer, below the stratum basale there is basement membrane zone, and below the basement membrane zone we have seen there is dermis. Okay, so this is the stratum basale. This is the stratum basale layer of the epidermis, and below that it is the basement membrane. Okay, so this stratum basale, इनका आपस में जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है? डेस्मोजोम से. ठीक है, सो दैट डेस्मोजोम्स जो होते हैं वो दो स्ट्रेटम बेसिली को कनेक्ट करने का काम करते हैं. सो इन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम कौन कर रहा है? डेस्मोजोम्स कर रहे हैं. ठीक है, okay, next we have is hemidesmosome. These are hemidesmosome. Hemidesmosomes क्या कर रहे हैं? स्ट्रेटम बेसिली लेयर ऑफ एपिडर्मिस को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं. ठीक है, स्ट्रेटम बेसिली को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? हेमीडेस्मोजोम. और डेस्मोजोम जो है वो दो स्ट्रेटम बेसिली को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं. स्ट्रेटम बेसिली क्या है? एपिडर्मिस की लेयर है. ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? जंक्शन बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस. ठीक है, तो दो डेस्मोजोम्स आर कि वो स्ट्रेटम बेसिली को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में. और हेमीडेस्मोजोम्स क्या हुए? स्ट्रेटम बेसिली को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का काम. अब अगर हम बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है लेयर वो अगेन दो में डिवाइड होती है. ठीक है, जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम ल्यूसिडम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम ल्यूसिडम बोलते हैं, सॉरी लैमिना ल्यूसिडम बोलते हैं. ठीक है, और नीचे जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलेंगे? लैमिना डेंसा. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी दो लेयर होती हैं, लैमिना ल्यूसिडा और लैमिना डेंसा. और उसके नीचे हमें क्या देखने को मिलता है? डर्मिस देखने को मिलती है. ठीक है, जो डर्मिस होती है वो रिच इन कोलेजन. दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम. सो वी हैव डेस्मोजोम जो स्ट्रेटम बेसिली को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन और स्ट्रेटम बेसिली में कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं दैट इज़ हेमीडेस्मोजोम्स. और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो अगेन उसकी दो लेयर्स होती हैं जिसको दो में हम डिवाइड करते हैं, लैमिना ल्यूसिडा में और लैमिना डेंसा में. और बिलो दैट बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारे पास में क्या मिलेगा? डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन मिलेगा. ओके, so these desmosome what it will do? They will connect the stratum basale layer. Okay, नेक्स्ट वी विल सी द हेमीडेस्मोजोम. ये जो हेमीडेस्मोजोम होते हैं ये स्ट्रेटम बेसिली लेयर ऑफ द एपिडर्मिस को डेस्मोजोम से कनेक्ट करने का काम करते हैं. ये जो हेमीडेस्मोजोम्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड BPAG1 230. ओके, BPAG1 230.
Basement membrane, it is divided into two, that is the laminar lucida layer and laminar densa layer. This laminar lucida layer is made up of laminin BPAG2 and alpha 6 beta 4 integrin. Okay, so laminar lucida is BPAG2, okay, whereas hemidesmosome is BPAG1 to 30. Next we have is the laminar densa layer, that is made up of collagen. Okay, so laminar lucida is made of laminin BPAG2 alpha 6 beta 4 integrin. Laminar densa layer is made up of collagen. अगर बेसिकली क्या होता है, हेमीडेस्मोसोम्स जो होते हैं ये अफेक्ट होते हैं बुलस पेम्फिगॉइड. हम जब डिसीजेस की डिटेलिंग करेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे बुलस पेम्फिगॉइड्स. बट अभी के लिए अगर हेमीडेस्मोसोम आया है तो मैंने थोड़ा सा इसको आइडिया देती हूँ कि बुलस पेम्फिगॉइड्स जब हम डिजीज़ पढ़ेंगे बुलस पेम्फिगॉइड, वहाँ पे क्या होता है, हेमीडेस्मोसोम अफेक्ट होते हैं. ओके, बेसिकली ये जो बुलस पेम्फिगॉइड है यहाँ पे क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती हैं अगेंस्ट द BP180, दैट इज BPAG2. okay, BPAG2 and BPAG230, AG1 that is 230. ठीक है, BPAG1 230 एंड BP180 AG2. इसके अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडी. हमें पता है हेमीडेस्मोसोम किससे बने होते हैं, BPAG1 230. तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती हैं इन बुलस पेम्फिगॉइड्स. तो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं. अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन इन ऑर्डर ऑफ टॉप टू बॉटम फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप स्ट्रक्चर. A. डेस्मोग्लिन, B. हेमीडेस्मोसोम, C. कोलाजन 7 एंड D इज लेमिनिन. ये जो डेस्मोग्लिन है, बेसिकली डेस्मोसोम जो होते हैं दे आर मेड ऑफ डेस्मोग्लिन. ओके, अब बताइए, सुपरफिशियल टू डीप अरेंज करना है इसको. तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डेस्मोग्लिन, क्योंकि हमारे पास में सबसे पहले क्या होते हैं, स्ट्रैटम बेसिली को कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं, डेस्मोसोम. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, डेस्मोग्लिन आएगा. उसके बाद में हेमीडेस्मोसोम आएगा जो स्ट्रैटम बेसिली लेयर को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करते हैं. तो पहले डेस्मोग्लिन, नेक्स्ट हेमीडेस्मोसोम, उसके बाद आएगा कोलाजन 7, नहीं उसके बाद आएगा लैमिनिन, देन कोलाजन 7. ये जो कोलाजन 7 है अभी हम इसमें डिटेलिंग में देखेंगे. ठीक है, कोलाजन 7 जो होता है, ओके, तो 1 देन 2 देन 4 देन 3. ठीक है, कोलाजन का डर्मिस बना होता है और कोलाजन का लैमिना ल्यूसिडा लेयर इज मेड अप ऑफ व्हाट, लैमिनिन ना. सो लैमिनिन हमारे पास में कौन से नंबर पे आ जाएगा, 4th नंबर पे आ जाएगा, और लैमिनिन 3rd नंबर पे आएगा, कोलाजन 4th नंबर पे. ठीक है, हाँ. ओके, सो A then B then D then C. Thank you. The next lecture we will see the desmosome detailing. Hello friends, in this short video we are going to discuss a beautiful diagram from Davidson dermatology lecture. Okay, so this is the diagram of the structure of the skin. In my previous lecture of dermatology, I have taught you the layers of the skin and the basement membrane zone. So this is the very beautiful diagram I got from the Davidson book. तो यहाँ पे देखो, हमको सबसे पहले हमने देखा था आउटर लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे डर्मिस देखने को मिलती है और डर्मिस के नीचे सबक्यूटिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपोडर्मिस. अगर हम एपिडर्मिस की बात करेंगे तो एपिडर्मिस क्या होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर है. ठीक है, अगर हम एपिडर्मिस को जूम करके देखेंगे तो हमको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा. ठीक है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हमने देखा था लेयर ऑफ एपिडर्मिस में क्या कौन कौन सी लेयर्स थी, स्ट्रैटम कॉर्नियम, वी हैव स्ट्रैटम ल्यूसिडम,
स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम एंड बेसल लेयर। बिलो द बेसल लेयर ये हमारी बेसल लेयर थी, ठीक है, और बिलो द बेसल लेयर क्या था, बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन। ओके, सो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन है, जैसे ये है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन के नीचे हमें क्या मिलेगी, डर्मिस मिलेगी। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन इज द जंक्शन बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस। तो ये एपिडर्मिस है, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन है, इसके नीचे क्या होगी, डर्मिस लेयर होगा, ठीक है। तो अगर हम एपिडर्मिस की बात करेंगे तो एपिडर्मिस में हमने देखा था कि एपिडर्मिस में किराटिनोसाइट्स होते हैं। 90% सेल्स किराटिनोसाइट्स होते हैं, 10% सेल्स में लैंगहेंस सेल्स आते हैं, मिलानोसाइट्स आते हैं, ठीक है। अब ये जो 90% किराटिनोसाइट्स हैं, इसमें भी देखो स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम वाले लेयर में जो ग्रैनुलर लेयर है वहाँ पे जो किराटिनोसाइट्स मिल रहे हैं, केराटिन 1 एंड 10। बेसल लेयर में जो किराटिनोसाइट्स है उसमें केराटिन 5 एंड 14 है। तो 90% हमें किराटिनोसाइट्स देखने को मिलेंगे, बाकी 10% में लैंगरहैंस सेल्स मिलेगा, मिलानोसाइट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो एपिडर्मिस लेयर हो गई। अब जो हमारी जंक्शन बिटवीन द एपिडर्मिस एंड डर्मिस इज नोन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन ये है, इसको जूम, ये वाला जो लेयर है दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन, इसी को जूम करते हुए दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में उसकी डिटेलिंग बताई हुई है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे केवल हम डायग्राम को समझ रहे हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटम बेसल लेयर, ये स्ट्रैटम बेसली, स्ट्रैटम बेसली, दोनों स्ट्रैटम बेसली आपस में किससे कनेक्टेड होती हैं, डेस्मोजोम से कनेक्टेड हैं। तो ये देखो, ये हमारे क्या है, बेसल किराटिनोसाइट्स हैं ये, ठीक है, आपस में किससे कनेक्टेड, डेस्मोजोम से। सो डेस्मोजोम किसको कनेक्ट करते हैं, दो स्ट्रैटम बेसली को कनेक्ट करने का काम करते हैं, उस सेल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। डेस्मोजोम किसके बने हुए होते हैं, डेस्मोग्लिन 1 एंड 3, डेस्मोप्लाज्मिन, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे हेमीडेस्मोजोम ये है, तो हेमीडेस्मोजोम ये है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये देखो स्ट्रैटम बेसली को किससे कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, और उसके नीचे डर्मिस है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रैटम बेसली, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द डर्मिस। अब तो हेमीडेस्मोजोम किसके बने हुए होते हैं, BP230 टाइप 17 कोलेजन, अल्फा 6 बीटा 4 इंटीग्रिन एंड प्लेक्टिन। तो स्ट्रैटम बेसली को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का काम किसका है, हेमीडेस्मोजोम का। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये दो चीज़ों का, इट इज़ ऑफ 2 टाइप। ये देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, उसके नीचे तुम्हें क्या मिलेगा, डर्मिस मिलेगा, ये एपिडर्मिस का बेसल लेयर, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके नीचे डर्मिस, ठीक है। अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो भी लैमिना 2 टाइप का होता है, लैमिना ल्यूसिडा, लैमिना डेंसा। लैमिना ल्यूसिडा जो होता है ये है लैमिना ल्यूसिडा, ठीक है, ये लैमिना ल्यूसिडा है, ये लैमिना डेंसा है। लैमिना ल्यूसिडा किसका बना होता है, लैमिनिन 1 का, और लैमिना डेंसा इज टाइप 4 कोलेजन, ठीक है। उसके नीचे डर्मिस है, डर्मिस को और क्या बोलते हैं, सब लैमिना डेंसा बोलते हैं। हमारे पास में इसमें एंकरिंग फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे, इसमें कोलैज एंकरिंग फिब्रिल्स, एंकरिंग फिलामेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ स्किन। तो हमने अच्छे से डायग्राम भी डेविडसन से देख लिया है, तो और क्लियरली अंडरस्टैंड आप कर सकते होगे इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, इन दिस lecture 5 of dermatology we are going to discuss the desmosome. Okay, that is the continuation of the physiology of the skin. So in the previous lecture we have studied what is desmosome. फिर से हम इसको एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं। डेस्मोजोम क्या होता है, सपोज ये क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में हमारे पास में लेयर होती हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम बेसेली, एंड देन वी हैव इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद में हमारे पास डर्मिस आएगा, देन हाइपोडर्मिस आता है। ओके,
सो व्हाट इज डेस्मोसोम? ये एक स्ट्रेटम बेसिली है, सेल है, ये स्ट्रेटम बेसिली है। स्ट्रेटम बेसिली को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है? हेमीडेस्मोसोम। ओके, सो स्ट्रेटम बेसिली, वी हैव स्ट्रेटम बेसिली, इनको आपस में कनेक्ट कौन करेगा? दैट इज डेस्मोसोम्स कनेक्ट करते हैं। ओके, डेस्मोसोम। सो आपस में स्ट्रेटम बेसिली को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? डेस्मोसोम। ये जो डेस्मोसोम होते हैं वो हम देखेंगे कि किस किस चीज़ के बने हुए होते हैं। सो डेस्मोसोम दे प्रेजेंट बिटवीन द टू केराटिनोसाइट। मतलब ये जो स्ट्रेटम बेसिली सेल्स है, यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं? एपिडर्मिस में 90% केराटिनोसाइट्स ही हैं, तो दो केराटिनोसाइट्स को कनेक्ट करने का काम किसका होता है? हेमीडेस्मोसोम्स का होता है। ये जो हेमीडेस्मोसोम होते हैं दे आर मेड अप ऑफ इंट्रासेलुलर सब यूनिट्स एंड इंटरसेलुलर सब यूनिट्स। नेक्स्ट, ये जो डेस्मोसोम होते हैं ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। जो डेस्मोसोम होते हैं उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? द वेरी फर्स्ट वी हैव इज डेस्मोकोलिन, नेक्स्ट वी हैव डेस्मोप्लेकिन, पेरीप्लेकिन, प्लैकोफिलिन। ओके, सो डेस्मोकोलिन, डेस्मोप्लेकिन, पेरीप्लेकिन, प्लैकोफिलिन, डेस्मोग्लिन। ओके, तो इन 5 दीज आर द पार्ट्स ऑफ डेस्मोसोम्स। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पिक द पार्ट ऑफ द डेस्मोसोम। ए डेस्मोग्लिन, बी डेस्मोकोलिन, सी प्लैकोफिलिन एंड डी लैमिनिन। तो हमें पता है डेस्मोसोम के कौन कौन से पार्ट हैं? डेस्मोग्लिन होगा, डेस्मोकोलिन होगा, प्लैकोफिलिन होगा, बट लैमिनिन इज नॉट द पार्ट ऑफ डेस्मोसोम। ठीक है, लैमिनिन किसका पार्ट है? लैमिनिन इज पार्ट ऑफ लैमिना ल्यूसिडा लेयर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट एंड सब एपिडर्मल स्प्लिट। बेसिकली इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट क्या होता है? अगर हमें कहीं पे भी स्प्लिट इस जगह पे मिल रहा है, मतलब एपिडर्मिस वाली लेयर में देखने को मिल रहा है, दैट इज इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट। एपिडर्मिस के बीच में अगर कहीं स्प्लिट मिल रही है दैट इज इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट। ओके, सब एपिडर्मल स्प्लिट मतलब एपिडर्मिस यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके नीचे कहीं हमें स्प्लिट मिल रही है। ओके, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में कहीं हमें स्प्लिट मिल रही है, दैट इज एपिडर्मिस के नीचे कहीं हमें स्प्लिट अगर मिल रही है दैट इज नोन एज सब एपिडर्मल स्प्लिट। इंट्रा एपिडर्मल मतलब एपिडर्मिस के बीच में स्प्लिट हो रही है, मिल रही है हमको, और सब एपिडर्मल मतलब एपिडर्मिस के नीचे। ओके, सो इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट। अब एपिडर्मिस की हमारे पास में कौन कौन सी लेयर होती है? स्ट्रैटम कॉर्नियम सबसे पहली लेयर, नेक्स्ट वी हैव स्ट्रैटम ल्यूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम और स्ट्रैटम बेसिली, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमने लेयर ऑफ एपिडर्मिस वाले लेक्चर में चले जाना अगर आपने एपिडर्मिस वाला टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट में सबसे पहला आता है स्पाइनस सेल लेयर। मतलब अगर स्ट्रैटम स्पाइनोसम वाली लेयर में कोई स्प्लिट देखने को मिल रही है दैट इज नोन एज स्पाइनस सेल लेयर स्प्लिट। ठीक है, तो जो हमारे पास में वायरल ब्लिस्टर्स होते हैं ना, जैसे हर्पीस वायरस का ब्लिस्टर हो गया या फिर हमारे पास में चिकन पॉक्स का ब्लिस्टर हो गया, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्पाइनस सेल लेयर में ये ब्लिस्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सब कॉर्नियल मतलब लेवल ऑफ स्प्लिट हमें कहाँ मिलेगा? स्ट्रैटम कॉर्नियम। इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल सुपरफिशियल ब्लिस्टर देखने को मिलेंगे। तो जो सब कॉर्नियल ब्लिस्टरिंग हमें मिलती है वो हमको कौन कौन सी डिजीज़ में मिलेगी? द वेरी फर्स्ट पेम्फिगस फॉलेशियस। पेम्फिगस फॉलेशियस में जो लेवल ऑफ स्प्लिट मिलता है वो हमको स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर ऑफ एपिडर्मिस में मिलेगा, बुलस इम्पेटिगो में भी। तो यहाँ पे जो भी हमें मिलेगा वो सुपरफिशियल ब्लिस्टर्स मिलेंगे।
बुलस इम्पेटिगो में भी लेवल ऑफ स्प्लिट क्या होगा, इंट्रा एपिडर्मल, और उसमें भी सब कॉर्नियल। स्टेफाइलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम, यहाँ पे भी लेवल ऑफ स्प्लिट क्या मिलेगा, सब कॉर्नियल, दैट इज स्ट्रैटम कॉर्नियम में। थर्ड वन बेसल और सुप्रा बेसल, तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ स्प्लिट होगा वो स्ट्रैटम बेसली वाले लेयर में होगा, स्ट्रैटम बेसली लेयर ऑफ एपिडर्मिस। तो इट इज़ ऑल्सो अ इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट। ये कौन कौन सी डिजीजेस में मिलेगा देखने को, हेली डिजीज़ में हमें बेसल स्प्लिट मिलता है, डेरीज डिजीज़ में, पेम्फिगस वल्गैरिस में, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा सिम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमें बेसल और सुप्रा बेसल इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट मिलेगा। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी डिजीज़ में कौन कौन से स्प्लिट देखने को मिलेंगे। सो इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट हमको इन सब में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम सब एपिडर्मल स्प्लिट की बात करेंगे, मतलब यहाँ पे एपिडर्मिस के नीचे हमें स्प्लिट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला आता है बुल्लस पेम्फिगॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट, सब एपिडर्मल स्प्लिट मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे जो ब्लिस्टर भी हमें मिलते हैं वो डीप बुल्ला देखने को मिलेगा, टेंस बुल्ला देखने को मिलता है, और सब एपिडर्मल ब्लिस्टर मतलब डीप इनसाइड स्किन के नीचे वाले लेयर में हमको ब्लिस्टर मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा जंक्शनल, ईबी डिस्ट्रॉफिका, बुल्लस एली, पोरफायरियस एंड बर्न, इन सारे केसेस में भी हमको सब एपिडर्मल स्प्लिट देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर इन स्किन इन ऑर्डर ऑफ देयर फ्लूइड कलेक्शन लेवल इन द स्किन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले हेरी डिजीज़, सिकैट्रियल या फिर स्कैरिंग पेम्फिगॉइड, एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा डिस्ट्रॉफिका, बुल्लस इम्पेटिगो, ठीक है। तो हेली डिजीज़ में हमको जो लेवल ऑफ स्प्लिट मिलता है वो इंट्रा एपिडर्मल मिलता है, ओके। सिकैट्रियल पेम्फिगॉइड में जो लेवल ऑफ स्प्लिट मिलेगा वो सब एपिडर्मल मिलता है। एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा डिस्ट्रॉफिका में जो लेवल ऑफ स्प्लिट मिलता है वो भी सब एपिडर्मल। बुलस इम्पेटिगो में जो स्प्लिट मिलेगा वो इंट्रा एपिडर्मल, ओके। अब एपिडर्मिस लेयर हमारे स्किन के सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, ठीक है। तो टॉप पे जो भी हमारे डिजीज़ आएंगी इंट्रा एपिडर्मल आएगी, उसके बाद हमारी सब एपिडर्मल एपिडर्मिस के नीचे, ओके। तो हेली डिजीज़ और बुलस इम्पेटिगो इनमें से कोई सबसे पहले आना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है। अब इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो समझने की, अब इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए ना तो आप इंट्रा एपिडर्मल और सब एपिडर्मल स्प्लिट को समझ सकते हो, ठीक है। इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट में आपके जो ब्लिस्टर्स मिलेंगे वो सुपरफिशियल ब्लिस्टर्स मिलेंगे। सब एपिडर्मल में जो ब्लिस्टर मिलेंगे, क्योंकि ये एपिडर्मिस के नीचे है, तो जो ब्लिस्टर्स मिलेंगे वो अंदर के साइड में मिलेंगे, मतलब डीप इनसाइड मिलेंगे, ओके। सो हेली डिजीज़ हमने देखा था कि इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट है, बट यहाँ पे हेली डिजीज़ में जो इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट है वहाँ पे भी एपिडर्मिस की वी हैव डिफरेंट लेयर्स, स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रैटम बेसेली लेयर, ठीक है। तो जो हेली डिजीज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पे स्ट्रैटम बेसेली लेवल पे होती है, ओके। हेली डिजीज़ स्ट्रैटम बेसल लेवल पे होती है, यहाँ पे है तो ये एपिडर्मिस के बीच में, बट स्ट्रैटम बेसेली लेयर इन्वॉल्व होती है, ओके। वेयरएज बुलस इम्पेटिगो की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, सब कॉर्नियल स्प्लिट है, मतलब लेवल ऑफ स्प्लिट क्या है, सब कॉर्नियल है, मतलब एपिडर्मिस की सुपरफिशियल लेयर इन्वॉल्व है, और यहाँ पे एपिडर्मिस में नीचे वाली लेयर इन्वॉल्व है, दैट इज स्ट्रैटम बेसेली। तो हमें यहाँ पे अरेंज कैसे करना है ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर को, टॉप टू बॉटम। तो टॉप पे क्या आएगा, बुलस इम्पेटिगो आएगा, उसके बाद में क्या आएगा हमारे पास में हेली डिजीज़ आएगा, ओके।
पहले तो हमारे इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट आएंगे, देन सब एपिडर्मल स्प्लिट आएगा। इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट में भी हमने कैसे डिफ्रेंशिएट किया कि हेली डिजीज़ जो है वहाँ पे स्ट्रेटम बेसिली लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है, बुल्ला सिम्पेटिको में स्ट्रेटम कॉर्नियम का। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे ऊपर वाली लेयर है, तो पहले वो आएगा, फिर हमारे पास में हेली डिजीज़ आएगी। इसका मतलब डी सबसे पहले आएगा, उसके बाद ए आएगा। अब सिकेट्रियल पेम्फिगॉइड और एपिडर्मोलाइसिस डिस्ट्रॉफिका बोथ आर सब एपिडर्मल स्प्लिट। अब पहले कौन सा आएगा? तो जो सिकेट्रियल पेम्फिगॉइड होगा यहाँ पे सब एपिडर्मल स्प्लिट होता है और एट द लेवल ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है सिकेट्रियल पेम्फिगॉइड में, ठीक है। वेयर एज एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा में सब एपिडर्मल एट द लेवल ऑफ डर्मिस, ठीक है। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन एट द लेवल ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन सिकेट्रियल पेम्फिगॉइड में, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा में एट द लेवल ऑफ डर्मिस, बट है तो सब एपिडर्मिस के नीचे, तो ये सब एपिडर्मल स्प्लिट हुए। पहले कौन सा आएगा? टॉप टू बॉटम अरेंज करना है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला पहले आएगा, देन डर्मिस वाला। तो लेवल ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन सिकेट्रियल पेम्फिगॉइड आएगा, लेवल ऑफ डर्मिस एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा डिस्ट्रॉफिका। ओके, सो अरेंजमेंट इज डी, देन ए, देन वी हैव बी और देन सी। ओके, so this is all about intraepidermal and subepidermal split. Okay, D, A, B and C. So this is all about the subepidermal and intraepidermal split. This is very important lecture. Okay, यहीं से आप डिजीज़ेस को डिफ्रेंशिएट करके समझ सकते हो कि कौन से ऐसी डिजीज़ होती है जहाँ पे तुम्हें डीप ब्लिस्टरिंग मिलेगा, कौन सी ऐसी डिजीज़ेस होती हैं जहाँ पे तुमको सुपरफिशियल ब्लिस्टर्स मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट lecture. From the next lecture we will discuss the bullous pemphigoid disease. Thank you.